girls are young, they like it. When they get old, they start shouting, screaming that the boy exploited them. Now the main thing is... One second. Stop. When they are young, they like it. Yeah. What do they like? When they're with boys, they enjoy it. And when they grow old, they're screaming... You are being tortured by us. He has said, when girls are young, they like it. And when they are older, then they scream and shout at us. I want to know what is this. We are forcing you to be with us. I am sorry that you are so tortured. I think this is the reason we are having this discussion today. That it's as per convenience. How can you blame it? That girls like it when they are young and they scream. I think that's ridiculous. I think that's very disrespectful to say to a girl. I think if there is sex or a kiss or a hug, there are two people there and not just the girl. Martin? Right, sir. Bodily exploitation जैसी सिर्फ एक चीज होती है वो है rape. Understand? होली आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है आई फील क्यों मनाई जाती है पता तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है हाँ सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है हाँ चाइना का प्रेसिडेंट I started off by saying that I am offering unconditional, without any reasoning, my apology for my conduct. I said that. I just want to hit him once. I really want to do that. I don't want to think about it after this at all. I don't want to think about it. No, that's very true. What I meant to say was obviously it's a very small petty thing for somebody like you. And I mean, not for you to react. I think the camera. Can you pan this camera on this lady here, Can please? you just pan the camera on her right now? It's a small petty thing. You have You're a absolutely girl. no idea what you're saying right now. And I am already very upset and you're making me even more upset. Okay, and you're being a woman and you're saying Yeah, this. that's very, very unfortunate. Karan, my question is for you. Yeah. Talking about Twitter, recently KRK posted a picture. I'm sure you must be aware about it. That you have. नहीं आपको मैं बोलूं KRK ने आज खुला मुझे दावा किया है कि अगर हमारी फिल्म चल गई तो अपना हथियार काट देंगे. हम लोग उनको एक आइस बॉक्स भेज रहे हैं, एक खास तौर से एक बहुत खास बना हुआ आइस बॉक्स भेज रहे हैं ताकि हम उनका जो हथियार है यहाँ पे जो म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा आ रहा है उसमें हम प्रिजर्व कर सके कि ये KRK जो इंडिया का सबसे इनकॉन्सिक्वेंशियल क्रिटिक है उसका हथियार है. उसको आई थिंक उसके लिए हम लोग अलग से टिकट भी लगाएंगे लोगों को देखने के लिए. तो ये आइस बॉक्स हम उनको भेज रहे हैं. रणवीर, Karan to react आपके on राइट this because रणवीर like the screenshot जॉनी of बलराज को जीने के लिए. Let me complete my question. Yeah. So I want Karan to react on this because the message was from you to him. Like that's what he has put a screenshot of. Can I ask you a question? Yeah. Do you believe I sent him that No, message? of course not. But then. I rest my case then. You're a regular at the Cannes Film Festival. So, I believe you gave an interview where you said that India is regressive and depressing. So why would you like to come to this country and find true love if you anyway have not really positive feelings about this country? I think you need to do your homework well, because I said Indian society is regressive for women. See the interview again, and Why do you think Indian society is regressive for women? I'll tell you exactly why. This is my point of view.
with female feticide, infanticide happening on almost a daily basis, with gang rapes making the headlines of every newspaper, with honor killings. Today only I tweeted about it. Today I read in the paper, according to UNFPA, 40% of Indian women, 40% are married below the age of 18. I think it's a very, very regressive state for women. And I stand by it. आज सारी प्रेस है, अभी YouTube में वो इंटरव्यू चलाते हैं. मैंने एक बार भी नहीं कहा कि इंडिया रिग्रेसिव है, डिप्रेसिंग है. आप प्लीज अपना होमवर्क कीजिए. जो औरतों की स्थिति है आज हमारे देश में, वो रिग्रेसिव है, डिप्रेसिंग है. You should correct it as a woman. As a woman, you have to correct it. It's your responsibility. But I'm not going to lie. You say, yeah. I am never going to lie. ये hypocrisy जो है ना हमारे समाज में, ये hypocrisy जिसका जो करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं. तो आप मुझे ये कह रही हैं कि औरतों के साथ अपने समाज में ये अत्याचार हो रहा है, ये रेप्स हो रहे हैं, ये ऑनर किलिंग्स हो रही हैं औरतों के साथ, और कोई मुझसे सवाल पूछता है तो मैं ना बोलूं? मैं झूठ बोलूं? Absolutely not. जब एक इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछ रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस गैंग रेप्स, जो रोज न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, CNN की हेडलाइन है, तो मैं क्या बोलूं? मैं झूठ बोलूं? तो आप मुझे क्या कह रही हैं? एज अ वुमन आई शुड लाई अबाउट द स्टेट ऑफ वुमेन दैट्स इन आवर कंट्री. So I didn't lie. I said the truth. और प्लीज मैं आप सबसे पूछती हूँ, मैंने क्या गलत बोला अगर सच बोला तो? हरियाणा में फीमेल फीटिसाइड कितना है मालूम है? 1000 men to 700 women कोख में ही मार देते हैं. और इस देश में देवी की पूजा की जाती है और बच्चे को, फीमेल बच्चे को कोख में मार देते हैं. हमने भी जैसा कि सुना है कि जब प्रॉब्लम्स होती है तो कौन सी प्रॉब्लम? ये जब प्रॉब्लम्स होती है. कौन सी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? मतलब कौन सी प्रॉब्लम? जब पीरियड्स की जब प्रॉब्लम्स होती है. प्रॉब्लम? हाँ, तो मालूम नहीं. जब प्रॉब्लम होती है ना तो पीरियड्स नहीं होते. मैं ये बताना चाहती हूँ आपको. ऐसा कुछ होता है तो फिर उसके बाद जब तो हम ऐसे लोग हैं, जरा इन पे कैमरा पैन कीजिए. ऐसे लोगों को मारने के लिए मैं यहाँ आई हूँ आज. तो मतलब हम ये भी सुनते हैं कि लोग या मतलब मंदिर नहीं जा सकते और पूजा नहीं कर सकते. तो ऐसी प्रॉब्लम्स कभी आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछिए. मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो इसे आप समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, पूछो ठीक से. हाँ वो नहीं आप नो. हाँ बोलो. ओके, तो ये क्वेश्चन दूसरा, यही क्वेश्चन चाहिए मुझे. तो पूछो मौका मिला. गुड, बात करो इसमें. यू हैव टू टॉक अबाउट इट. यू हैव टू टॉक अबाउट इट. यू कांट बी शाय अबाउट इट. नहीं, मैं शाय नहीं होता मैं कभी, लेकिन अभी कैसे आपको पता नहीं है. इतनी सारी लड़कियां खड़ी है, सब बोल रही है पूछो. मारेंगी तुम्हें सब. तो मतलब हमने सुना है कि लोग मंदिर नहीं जा सकते और पूजा नहीं कर सकते. तो ऐसी प्रॉब्लम्स मतलब कभी फेस करनी पड़ी परिणीति को? हाँ बहुत ज़्यादा. एंड मतलब मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ कह रही हूँ आपको, लेकिन जैसे आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है, आपको पीरियड्स के बारे में नहीं पता है, आप 24 साल के हैं, ये बहुत ही शेमफुल बात है. एक्चुअली हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये बहुत शेमफुल बात है कि आपको नहीं पता पीरियड्स के बारे में. 24 साल के हैं आप बाप बन सकते हैं आज के दिन, और आपको फिर भी नहीं पता है. इट्स सो सैड एंड दैट इज़ व्हाई आई एम हियर, बिकॉज मेन रियली नीड टू रिलैक्स. दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीरियड्स आर. दे रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब पीरियड्स नहीं होते ना, इसका मतलब लड़की बीमार है. आपको समझ में आता है? ये बहुत हेल्दी चीज़ होती है, बहुत नेचुरल चीज़ होती है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ हम गलत नहीं कर रहे हैं कि हमें पीरियड्स हो गया तो मतलब अभी हमें कहीं जाके छुपना है. ओके. First of all, I want to start by saying that I have not yet seen that roast, but I've heard about it. And I've seen 2-3 clips of it. I was deeply affected by that. I was most disappointed in what I was hearing. When I heard what was being described to me, I felt it was a very violent event. There was a lot of violence in that event. इसलिए मुझे पसंद नहीं आया. तो मैंने मेरे दोस्त हैं करण और अर्जुन, तो मैंने तो उनको डांटा. मैंने बोला यार मुझे ये फनी नहीं लग रहा है. और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा. तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है. मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा. हाँ गाली दी उसने यार. क्योंकि मुझे आई फील कि यार ये मेरा टाइप का शो नहीं, मुझे नहीं देखना. तो ये मेरे थॉट्स हैं उस शो को लेकर. इसलिए मैंने अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा. जितना मैं देखूंगा उतना और डिस्टर्ब हो जाऊंगा. 2 क्लिप्स देखे मैंने कहा मुझे नहीं देखना है. देखिए जिस तरह से मैंने उसको देखा था, और हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है. आपका एक है, मेरा है, किसी और का कुछ और होगा. मुझे ये एक ऐसा, इट वॉज इन गुड ह्यूमर अकॉर्डिंग टू मी. इट वॉज जस्ट नॉट सपोज टू बी एंड मेंट टू बी टेकन वेरी सीरियसली. दैट्स द वे आई लुक एट इट. एंड just like how this is my opinion, someone else is free to have their own opinion, and that's the beauty of living in a democratic setup.
मैं खुद जाके खुद गालियाँ देना चाहूँगी सबको, क्योंकि मज़ा आता है, लोग यही सुनना चाहते हैं। बिकॉज आज देखिए तो सबसे हाईएस्ट TRP अगर गूगल पे जाके देखे तो यही है यूट्यूब पे। तो सो गुड ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल में है वो बोलना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अब्यूज़ करना चाहिए तो अब्यूज़ करे, उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि सबने चीटिंग की है, वो उनकी करण जौहर उनकी वॉइस नहीं है। बिकॉज रणबीर इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड करण इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। ये उनकी आवाज़ है ही नहीं और किसी ने डब किया है, उनके फेस पे किसी ने डब किया है, उनकी आवाज़ है नहीं। ये मैं राकेश सावंत कह रही हूँ, ये उनकी आवाज़ नहीं है, सबने उनके साथ चीटिंग की है। फंसाना चाह रहा है, कोई उनको फंसाना चाह रहा है। बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज़ और ये लोग का इनका बड़ा नाम है, ये लोग कैमरे में आके ऐसी गालियाँ कभी नहीं देंगे। आई नो दैट। जैसा अभी मैं बोल रही हूँ, ऐसे बोलते बोलते कोई मेरे फेस पे गालियाँ डाल दे तो आपको लगेगा कि मैं गालियाँ बोल रही हूँ। That's it. You can now click on the link given in the description below to download the official Bollywood Backstage app for the latest news and gossip.